Good morning, students. I'm going to complete today your chapter Indigo from your Flamingo textbook. This is my last video, page number 53, first paragraph here. Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. Justified means marked by a good or legitimate reasons. Abandoned means deserted or inhabited. Estates means property. Reverted means returned. Okay. Gandhi never contented himself with large political or economical solution. Contented means willing to accept something satisfied. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. He appealed for teachers Mahadev Desai and Narahari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. Several more came from the Pune, Bombay and other distant parts of the land. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram's rules on personal cleanliness and community sanitations. अब यहाँ पर क्या हुआ? Events had proved Gandhi's position. इस घटना ने गांधी की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बता दी. The British planters had to leave their प्रॉपर्टी विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. ब्रिटिश को उसको अपने जो प्रॉपर्टी से यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा. दिस प्रॉपर्टीज वर रिटर्न बैक टू द पीसेंट्स. इन पीसेंट्स को वापस उनकी प्रॉपर्टीज दे दी गई. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सून केम टू एन एंड. वो शेयर क्रॉपिंग प्रोसेस जो था वो थोड़े ही समय में खत्म हो गया. गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. इतने समय वो सेटिस्फाइड नहीं हुए बाई अचीविंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सोल्यूशन. इससे वो संतुष्ट नहीं हुए. वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या देखा? He sought to remove a cultural and social backwardness of Champaran. उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है. कल्चरल भी और सोशली भी वो बहुत ही बैकवर्ड है. इनमें अंदर बहुत जागरूकता की ज़रूरत है. तो गांधी wanted to do something removing the backwardness in the village on Champaran. He requested teachers. उन्होंने टीचर्स को रिक्वेस्ट की. उनमें महादेव देसाई, नरहरि पारेख और उनकी वाइफ, इनने क्या करा? तो टीच द विलेजर्स. इन लोगों ने उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इन गाँव वालों को हमें पढ़ाना है. बोथ ऑफ देम फॉलोड गांधी. मैनी अदर्स वॉल्टियर्स केम. बहुत सारे और दूसरे भी जो सहायक थे, वॉल्टियर्स थे, बहुत सारे अलग अलग जगह से यहाँ आए गांधी को इस अभियान में सहयोग देने. उनमें उनका छोटा सा यंगेस्ट सन भी था, देवदास. वो आश्रम से यहाँ पर हेल्प करने आया था. और प्राइमरी स्कूल यहाँ पे बहुत सारे खोले गए इन 6 विलेजेस. और कस्तूरबा जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने सिखाया आश्रम के रूल्स और क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन. ये सारा प्रोसेस उनकी वाइफ ने यहाँ पर सिखाया. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर मंथ्स. यहाँ पे जो स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं उन्होंने यहाँ पे देखी. वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही बुरी उस कंडीशन में यहाँ पर थे. हेल्थ के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो उसके लिए भी वॉलंटियर सर्विस यहाँ पर करवाई गई गांधी के द्वारा. 3 मेडिसिन्स वेर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. और 3 तरह की दवाइयाँ भी अवेलेबल करवाई गई. और एनीबडी हु showed a coated tongue, he given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine. Pulse, castor oil. Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil. Gandhi noticed the 50th state of women's clothes. Pretty state of women's clothes. He asked Kasturba to talk to about it. One woman took Kasturba into the hut and said, "Look, here in no box or cupboard here for clothes. Her for clothes. The sari I am wearing is only one I have." Miserable यानी unhappy condition, sad, volunteer, a person who offers his services free of cost. Eruptions, here a spot, rash or other marks appearing suddenly on the skin. अब यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी मिजरेबल थी चंपारण की. बहुत पुअर कंडीशन थी. तो गांधी ने डॉक्टर्स को बुलाए जो फ्री ऑफ सर्विस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने को तैयार थे. और
3 मेडिसिन्स जो थे कैस्टर ऑयल कोलिन, ये पेशेंट्स को दी गई, अलग अलग बीमारियों के लिए तीनों को डिवाइड की गई। और फिर गांधी का ध्यान यहाँ की औरतों की वेशभूषा पे भी गई, जो बहुत ही डर्टी कपड़े पहने करती थी। गांधी ने कहा कस्तूरबा से कि आप जाओ इनसे बातें करो और पूछो। तो वहाँ की जो एक लेडी थी वो उन्हें ले गई। वो क्या कहा कि देखो क्या कहते वुमेन्स ऑफ द एरिया यूज टू वेयर डर्टी क्लोथ्स। व्हेन गांधी ट्राई टू नो द रीजन थ्रू हिज वाइफ, ही वॉज टोल्ड दैट दोज वेर द ओनली साड़ी ईच वुमेन हैज़। इतने गंदे कपड़े क्यों पहनते थे? क्योंकि उनके कबर्ड, उनके अलमारी में, बॉक्सेस में, कहीं भी और उनके लिए कोई कपड़े नहीं थे। सिर्फ वो एक जो उन्होंने पहन रखी थी वही साड़ी उनके लिए थी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. When he wrote to the residents that it was the time to fill in the old trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that British could not order me about in my own country. अब गांधी जी वहाँ पर क्या हुआ? इंस्ट्रक्शंस मीन्स ऑर्डर्स एंड कमांड्स, रेसिडेंट्स मीन्स लोकल्स, वहाँ के रहने वाले। वाइल गांधी वॉज इन चंपारण, ही केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस। जब चंपारण में गांधी थे तो बहुत वहाँ से बैठे बैठे ही वो आश्रम्स में ध्यान रख रहे थे। ही यूज टू सेंड लेटर्स, वहीं से वो लेटर्स और ईमेल्स भेजा करते थे, अकाउंट्स वगैरह फाइनेंशियल मैटर्स में भी देखा करते थे। फिर उन्होंने एक बार लिखा कि वहाँ की जो रेसिडेंस रहने वाले, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नए लेटरिन्स के होल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अगर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी वो भरा जाएंगे और बहुत बुरी बदबू वो पुराने में से आने लगेगी। और फिर उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि चंपारण का जो इंसिडेंट था, यहाँ पे चंपारण में जो उन्होंने किया वो एक गांधी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों था? उन्हें क्यों कहा ऐसा? ही सेड दैट ही हैड डन अ रेगुलर थिंग। उन्होंने कहा कुछ अलग उन्होंने नहीं किया, बस बहुत ही ऑर्डिनरी थिंग उन्होंने की। वो क्या थी? ही हैड पुट हिज पॉइंट अक्रॉस द ब्रिटिशर्स कुड नॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री। उन्होंने क्या कहा बस ब्रिटिशर्स को कि आप हमारे ही देश में आकर, हमारे ही देश में आकर हम पर ही हुक्म नहीं चला सकते। बस इतना सी ही एक चीज़ थी जो उन्होंने यहाँ पर की। बट द चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ defense. It grew out an attempt to alleviate the distress of a large number of a poor peasant. This was typical Gandhi's pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. He was not a loyalty to abstraction. It was a loyalty to living human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus made India free. The Champaran Satyagraha was not an act of opposition. It was an attempt to help out the poor and tortured people. ये कोई किसी चीज़ का विरोध नहीं था, बस ये एक चीज़ थी कि उन गरीब, बेसहाय, निसहाय पेशेंट्स को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। दिस वॉज गांधीज वे टू सॉल्व इश्यूज़। वो उनका तरीका था गांधी जी का कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस तरीके से उन्होंने किया। हिज पॉलिटिक्स वॉज knitted अप विद एवरी डेज। उनकी जो पॉलिटिकल जो तरीका था वो क्या था? आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ना और उनकी रोज़मर्रा की जो समस्या है उनका समाधान करना। ही डिड नॉट एम टू फुलफिलमेंट ऑफ आइडियाज, रादर ही वॉज कंसर्न फॉर द पीपल। वो उनको सिर्फ अपना स्वार्थ या अपना निजी कुछ औधा प्रूव करना नहीं था, लोगों के साथ बिल्कुल आम लोगों के जैसे ही बर्ताव कर उनकी समस्या को समाधान करते थे। द बेसिक आइडिया वॉज टू सर्व द ह्यूमैनिटी। मानवता की सेवा ही उनका सर्वोपरि धर्म था। एंड मेक फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड फॉर इट्स राइट। और हमारे देश को स्वतंत्र करना और अपने अधिकारों के लिए हमें खड़े रहना। Early in the Champaran action, Charles Frewer Andrews, the English pacifist who had become an advocate, who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going a tour of duty to the Fiji island. अब यहाँ पे क्या हुआ? एक जो गांधी जी के फॉलोवर थे, डिवोटी थे, वो जब जा रहे थे तो उन्होंने गांधी जी को लास्ट फेयरवेल आकर
कहा कि वो अब जा रहे हैं, विदा लेने के लिए आए थे। गांधी इस लॉयर फ्रेंड्स, जो गांधी के साथ उनके जो दूसरे लॉयर फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या कहा, थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। और उन लॉयर्स का इरादा था कि इस डिवोटी, जो गांधी के बहुत अच्छे डिवोटी थे, बहुत अच्छे मित्र थे, वो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे, उन लोगों को लगा कि अगर वो यहाँ रुकेंगे तो चंपारण के लिए अच्छा होगा। मगर गांधी जी ने क्या कहा यहाँ पर, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। He said, "You think that it is this unequal fight? It would be helpful if we have an Englishman on our side." उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम अच्छा करेंगे कि अगर इंग्लिशमैन को हमारे साथ रख लेंगे तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। दिस शोज़ दैट द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, ये हमारी कमज़ोरी को दर्शाएगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। द कॉज टू विन द बैटल यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन एंड्रू, और तुम्हें हमारे युद्ध जीतने के लिए उसे एक हथियार के रूप में हमें इस्तेमाल नहीं करना है एंड्रू को, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ है, तो हमें उनको अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, यहाँ राइट ऑथर क्या कह रहे हैं कि वो उन्होंने हमारे मन में जो चल रहा था उन्हें बिल्कुल आराम से उन्होंने पढ़ लिया। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड एंड हैड नो रिप्लाई, गांधी इन दिस वे थॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया, आत्मनिर्भरता का, आत्मनिर्भर बनने का हमें सीख दिया, उसका पाठ हमें सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प शेयर क्रॉपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब चीज़ें एक साथ हो गई। होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया। ऑल दिस एक्ट्स ऑफ गांधी वेर इंटरकनेक्ट, ये सारी जो चीज़ें थी, इवेंट्स थे, हर छोटी छोटी जो घटनाएं इस चंपारण के अभियान में जो भी हुआ, घटित हुआ, ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे से को रिलेट कर रही थी, इंटर रिलेट कर रही थी। इसमें हमें किस किस चीज़ों का पार्ट सीखने को मिला, ये है हमें सेल्फ रिलायंस का, इंडियन इंडिपेंडेंस का, और कैसे हमने शेयर क्रॉपर्स की पद्धति से एक साथ छुटकारा पाया। सारी चीज़ें ऑल बाउंड टू गेदर इन दिस चंपारण इवेंट। हमने यहाँ पर पहले भी हमने जब ब्रीफ समरी जब इसकी देखी थी तब भी हमने यही डिस्कस किया था कि ये जो पूरा जो लेसन है, कैसे गांधी जी को आइडिया मिला, एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, कि कैसे उन्हें वो आइडिया मिला कि हमें अपने देश को कैसे उन लोगों से आज़ाद करवाना है जिनके हम अधीन होकर रह गए हैं। चंपारण's incident that made him think that he did not need the Britishers' advice while he was in his own country, as he was in his own country, ये आइडिया उनको इस एपिसोड से, इस इवेंट से मिला। अब आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।